तो मैं पहली बार, शायद कुछ लोग पहली बार सुन रहे होंगे, मैं कनाडा के लिए पहली बार बोल रहा हूँ। और अनीता जी ने रिक्वेस्ट की, तो जो टॉपिक है ये 5D शिफ्ट है। और जब भी शिफ्ट होता है तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना जो है वो सडनली डिसअपियर होना है, डिसफंक्शनल है, और नया अभी प्रकट नहीं होता। तो दैट क्रिएट्स ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। तो हम लोग पहले, आज का टॉपिक भी यही अनीता जी से बात हुई थी कि क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं, और उन कन्फ्यूजन्स को अगर हम समझ सकें तो हम अपनी जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। तो जो बातें मैं कहूँगा, पहली बार अगर कुछ नेगेटिव भी लगें या हम पहली बार सुने, तो हम अपनी कॉन्शियसनेस को थोड़ी देर के लिए एक्सपेंड करें। इसमें बहुत स्कोप है। अगर हम फिल्टर कर देते हैं तो इन्फॉर्मेशन नहीं अंदर आ पाती। थोड़ी देर के लिए सुने, क्वेश्चन आंसर होंगे, मैं सारे आपके प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। देन इट विल क्रिएट द क्लैरिटी, और उस क्लैरिटी के साथ हम अपनी जर्नी को आगे कर सकते हैं। तो पहला पार्ट जो है वो थोड़ा सा नेगेटिव है। जैसे हम रिसेंट जो इस धरती पे घटनाएं हो रही हैं उनको ऑब्जर्व करें कि वो क्या हो रहा है। अभी हवाई इंसल में फायर हुई, आप सब लोगों ने देखा। वो इंसल में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि नॉर्मली फायर नहीं हो सकती। आइलैंड है, उस आइलैंड में घर जल गए, और लेकिन पेड़ पौधे खराब नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, पेड़ हैं वो नहीं जले, लेकिन मकान और लोग और कारें जल गई। किस तरह का वेपन था जिसकी वजह से ऐसा हो पाया? अगर हम आंखें बंद रखेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। और जो समय ऐसा है कि मीडिया जो है फुल कंट्रोल में है, वो कई बार बताता नहीं है कि धरती पे क्या हो रहा है। और ये फायर चलती रही, एक स्टेज पे आके रुक गई जहां पे से इलीट लोगों के मकान थे, वहां तक फायर आई, उसके बाद फायर रुक गई। इसी साल माउई में, हवाई में डिसाइड हुआ कि हम स्मार्ट सिटी को बनाएंगे, और स्मार्ट सिटी के बाद अब ये यहाँ पे फायर यहाँ पे हो गई है। मैं सिर्फ 2 मिनट की एक वीडियो क्लिप प्ले करता हूँ जिसमें आप देखें कि किस तरह, अगर मीडिया नहीं बोल पाती है तो लोग वहाँ पे अपनी वॉइस उठाते हैं। और उन्होंने इस वीडियो में बताया कि 2 मिनट की वीडियो में वहाँ पे क्या क्या घटनाएं हुई। Connecting all these dots, like I said, one thing could be an accident, two things can be an accident, but this many, as you're starting to get into it, I start to see it as it's an attack on the people, and that's why I spoke out about it. So there's a new video that just surfaced from the Maui Emergency Management Agency. And I want everybody to go look at this video. This man right here was asked, "Do you regret not sounding the sirens?" And he said, "I do not." So we want to talk about a few things that are missing from the equation of the Hawaiian fire. They're saying that this is climate change, but this lady was talking about how they shut off the water so that people couldn't put out the fires. And he was talking about how people were trying to escape the city and are being turned around by the police officers just due to the power lines that were in the road. So they forcefully told the people to go back into the fires. Notice how the fire suddenly stopped before it got to the millionaires' houses, but burned down to ashes the locals' properties that were not giving up for sale. What's more crazy is that all of this was climate change. They said that every single thing related to every topic I just told you was related to climate change. So today we're going to give a little update on the Hawaiian fires. Now I want you to look at this footage, and this sure doesn't look like a fire to me. It looks like something almost exploded or something went off. Now what's interesting is certain things are still standing while other things are not. Now the governor did say this is climate change doing this. Interesting. What they don't talk about is in January how they had in Maui a smart city conference to turn Maui into an entire smart island. We are so put into fear, like this is, this and this is that and all of this. And it's funny because that's the most things I get fact checked on. Anytime I talk about abundance and I show unlimited something, that's the first fact check that comes. So, that must be a threat. That beautiful positivity must be a threat to their system. That's how I see it. So as I started putting out solutions and started learning about this, I thought there's got to be a counter to all of this. फॉर एग्जाम्पल, अभी रशिया में जो आर्मी रिवोल्ट कर रही थी, मास्को और टैंक जा रहे थे, आपने लास्ट मंथ की ये घटना है। आज की न्यूज़ में है कि प्लेन क्रैश हो गया और जो उनको लीड कर रहा था उसकी डेथ हो गई, मर्डर हो गया। 9/11 अटैक हुआ था
जिसने अफगानिस्तान पे अटैक करने का बेस तैयार किया था। इस में जितने लोगों ने रिसर्च की है, ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा जो लोग इस टॉपिक पे को इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए। जूडी वुड की ये बुक है, बहुत इंटेंसिव रिसर्च के बाद उन्होंने लिखी है, उन्होंने लेक्चर दिए। तो लेक्चर में पूछा गया कि ये जो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ हुई थी वहाँ पे 9/11 के अटैक में, वेदर इट वाज एन हार्प टेक्नोलॉजी। हार्प के बारे में भी हम लोग बहुत कम जानते हैं। तो उन्होंने कहा इट हार्प इज़ द प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी कंपेयर टू व्हाट वाज यूज्ड इन 9/11 अटैक। आप इनके सेमिनार भी देख सकते हैं, यूट्यूब में अवेलेबल हैं और ये बुक अवेलेबल है। डार्क एनर्जी वेपन्स की टेक्नोलॉजीज इनके पास हैं, और जो भी डिसास्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आते हैं, अभी टर्कई में अर्थक्वेक जो आया था उसके बारे में भी ये कन्फ्यूजन है कि वेदर इट वाज ए नेचुरल और इट वाज क्रिएटेड आर्टिफिशियली। पिछले 3 सालों में हमने एक पेंडेमिक देखी, एक बीमारी देखी जो हर साल 2 बार होती थी, फ्लू टाइप की कंडीशन। उसमें इस हद तक कंट्रोल किए गए कि हम ट्रैवल नहीं कर सकते, अपने प्रियजनों से मिल नहीं सकते, और इंडिया में तो हमें डेड बॉडी भी प्लास्टिक में पैक करके दी गई थी, हम उनको देख नहीं सकते थे। तो और हमें फोर्स किया गया एक अपने शरीर में डालने के लिए जिसकी इमरजेंसी यूज़ की परमिशन थी। इट वाज नेवर अलाउड mRNA टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसके रिस्क बहुत ज़्यादा थे। इमरजेंसी यूज़ में परमिशन दे के फोर्स की गई, अदर हम उसको ट्रैवल नहीं कर सकते थे। और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, इराक पे इन्वेजन किया गया ये कह के कि वहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हैं। 500,000 पीपल, 5 लाख लोगों की वहाँ पे डेथ हुई, बच्चे अनाथ हुए और एक भी वेपन नहीं मिला। क्यों? हम किस समाज में हैं कि इस तरह की घटनाएं होती हैं और हम इसको चुपचाप देखते रहते हैं? कर्नल गद्दाफी लीबिया में था, उस सिर्फ एक स्टेटमेंट आया और सालों से वो डिक्टेटर था या नहीं था, लेकिन वहाँ के लोग ठीक थे कि उसने कहा कि अरबियन कंट्रीज़ को हमारी एक करेंसी बनानी चाहिए। वो डिक्टेटर डिक्लेयर हुआ, अब नहीं है इस दुनिया में। और वहाँ पे कंट्री के क्या हाल हैं, अफगानिस्तान में क्या हाल हैं, इराक में क्या हाल हैं। एलियंस की बातें होती हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं बताती एलियन है या नहीं है। और अब जब फेक एलियन इन्वेजन करने की बात होती है तो 12 जून को यूएसए में डिस्क्लोजर के नाम पे स्टीवन ग्रियर यूफोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि अब इसको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा समय तक नहीं छुपा सकती, एलियन के बारे में गवर्नमेंट को डिस्क्लोजर करने पड़ेंगे। तो हमारी गवर्नमेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो हमारे फ़ायदे के लिए हैं या हमें इसमें परेशान करना चाहती हैं। और स्टेट्स गवर्नमेंट ने 30 जून को, प्रॉब्ली आप सब लोगों को पता होगा कि अर्थ को सैटेलाइट के थ्रू क्या हम इसमें ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है इसको स्टॉप करने के लिए हम सैटेलाइट के थ्रू क्या मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं, ये स्टेट्स गवर्नमेंट ने 30 जून को रेजोल्यूशन पास किया है और इस पे वो काम कर रहे हैं। दैट इज़ द कंफ्यूजिंग पार्ट और नेगेटिव पार्ट। क्यों हो रहा है ये सब और कौन कर रहा है, ये क्वेश्चन तो नेचुरली उठेगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी कोई पॉलिटिकल सेंसिटी नहीं है, पूरी दुनिया में एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और अभी G7 G8 की मीटिंग थी, उसमें वहाँ के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के चेयरमैन कार्ल श्वाब पहुँच गए और लोग पॉलिटिकल को डिक्टेट करते हैं कि क्या पॉलिसीज होनी चाहिए। थोड़ा सा आप सब लोगों के लिए, अगर पहली बार सुन रहे हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वेबसाइट में जाके देख सकते हैं। उनका स्लोगन है यू विल ओन नथिंग एंड यू विल बी हैप्पी। अभी अर्थ की जो वेल्थ है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत अनइक्वल है। से 1% लोग जो हैं वो 80% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। 5% पीपल जो हैं वो 80%, 5% पीपल जो हैं वो 95% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले लोगों के लिए दे विल ओ एवरीथिंग, उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन बाकी लोगों की सारी जो हार्ड अर्न मनी है या जिसको वो सेफ्टी मानते थे, वो इसके लिए कंट्रोल प्रोग्राम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। इसको थोड़ा सा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट में आप जाके देखेंगे तो खुद आपको कन्फ्यूजन होगा, एंड दैट कन्फ्यूजन विल क्रिएट योर क्लियरिटी कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है।
ग्रेट रीसेट, ये शब्द आप लोग रिसेंटली सुन रहे होंगे, इट इज़ जस्ट अपोजिट द ग्रेट अवेकनिंग। ग्रेट अवेकनिंग जो हो रही है, इसका जो अपोजिट है वो ग्रेट रीसेट है। ग्रेट अवेकनिंग के बारे में, ग्रेट अवेकनिंग इज़ द युग परिवर्तन जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, इसको स्टॉप करने के लिए ग्रेट रीसेट का जो बातें होती हैं। नाउ व्हाट इज युग परिवर्तन और ये कैसे होता है? हमारी अर्थ जो 23rd डिग्री पे टिल्टेड है, इसकी जो एक 26,000 की साइकिल्स में जो पोल हैं ये शिफ्ट होते हैं हर 13,000 साल में। जो नॉर्थ है वो उसमें शिफ्ट होता है साउथ पोल में। ये प्रोसेस हर 13,000 साल में होता है। इससे वैसे 26,000 साल में होता है, लेकिन दिन और रात, जैसे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, टोटल साइकिल 24 आवर्स की है, ऐसे ही ये 26,000 ईयर में 13,000 ईयर में पोल शिफ्ट होते हैं। पोल शिफ्ट होने के हम कगार में हैं, लेकिन जिस तरह मीडिया नहीं बताती तो हमें इसके बारे में अभी नहीं पता है। 1999 में तुर्की में कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड के फेमस जियोफिजिस्ट वहाँ पे गए थे और उन्होंने तब बताया था कि कितनी तेज़ी से पोल शिफ्ट हो रहे हैं, और इसके रिस्क वहाँ पे डिक्लेयर हुए थे, लेकिन कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल थी, प्रेस को अलाउड नहीं था, और अभी तक उसके बारे में गवर्नमेंट नहीं बोलती है। पिछले कुछ समय में थोड़ा सा मीडिया में आना शुरू हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कम है। इतनी बड़ी घटना है पोल शिफ्ट, क्योंकि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें अभी तक एग्जैक्टली नहीं पता कि ह्यूमैनिटी किस तरह इसको रिसीव कर पाएगी, लेकिन फिर भी इसके बारे में नहीं बोला जाता। जब पोल शिफ्ट होते हैं तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड भी आप देख सकते हैं, चार्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्लोली घट रही थी, लेकिन अब ये वर्टिकली घटनी शुरू हो गई है। क्या होता है जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड घटती है? जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जब इनकी ट्रेनिंग की जाती है तो वहाँ पे इनको आर्टिफिशियल कंडीशन जनरेट की जाती हैं, जिससे इनकी अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि उनको एंटी ग्रेविटी टाइप की, जहाँ पे ग्रेविटी ना हो, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए। ऐसी सभी सिचुएशंस में उनके सेल रीजनरेट होने शुरू हो जाते हैं, एजिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, और टेलीपैथिक एबिलिटीज़ अपने आप जनरेट होनी शुरू हो जाती हैं। दो एस्ट्रोनॉट जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहाँ पे, उनके अंदर टेलीपैथिक एबिलिटीज़ हो जाती हैं, वो अपने आप फील करते हैं कि क्या पार्टिसिपेंट महसूस कर रहे हैं। और भी कई चेंजेस होते हैं, लेकिन ये मेजर चेंजेस हैं, और हम इसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड में अर्थ पहुंच रही है, जो इस बात का एक साइन है कि अर्थ पे चेंजेस आ रहे हैं। एक और अर्थ की जो फील्ड नापी जाती है, शूमान रेजोनेंस, 7.83 हर्ट्ज थी सालों से, जब से वो इन्वेंट हुई थी। कभी कभी थोड़ा सा वेरिएट करती थी, अब वो ऑलवेज उसकी जो रीडिंग है बढ़ रही है। जो एक और, जब भी ये मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होती है, इसका एक बहुत अच्छा लक्षण होता है कि हमारी थर्ड आई, जो कि काल्किफाई है, ये एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो हमारी थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो रही है, क्योंकि ये हम इस प्रोसेस से अर्थ गुजर रही है। और ये 36 ईयर की साइकिल थी, क्योंकि 26,000 साल को नापना बहुत कठिन था कि एग्जैक्ट पिन पॉइंट कब होगा। इसका मिडिल पॉइंट था 2012, उससे 18 साल पहले से 1994 से ये प्रोसेस अर्थ पे स्टार्ट हुए। इसी की वजह से इसको स्टॉप करने के लिए, इस ग्रेट अवेकनिंग को स्टॉप करने के लिए ग्रेट रीसेट है। और इसके बारे में दो और बातें जो रिसेंट हमें पता लगी, एक तो लॉ ऑफ वन 1981 में चैनल टीचिंग थी, उन्होंने बताया कि इस पोल शिफ्टिंग के बारे में, या अर्थ की जो 26,000 ईयर की साइकिल है, ये इससे पहले 2 बार हुई थी। जब भी ये साइकिल होती है और ये फेस आता है, उसमें कॉस्मिक सन से जो अर्थ पे एनर्जी आती हैं, ये हमें स्पिरिचुअली अवेक करती हैं। जो हम फॉल्स मैट्रिक्स में हैं उसके बारे में हम अवेयर होते हैं, हम इसमें से असेंड कर सकते हैं। लेकिन पिछली 2 बार बहुत कम लोग कर पाए थे, ऐसा उन्होंने इस टीचिंग में बताया। और इस थर्ड बार, जब भी किसी प्लेनेट पे थर्ड बार ये इवेंट होता है, तो कंप्लीट प्लेनेट जो है वो नेक्स्ट कॉन्शियसनेस में आ जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा चेंज कैसे आएगा। इनफैक्ट जो हमारी रियलिटी जिसको हम परसीव करते हैं,
ये हमारी कॉन्शियसनेस इसको प्रोजेक्ट कर रही है। जब हमारी कॉन्शियसनेस थर्ड डायमेंशन की कॉन्शियसनेस है, इसलिए हम थर्ड डायमेंशन की रियलिटी को क्रिएट कर रहे हैं और परसीव कर रहे हैं। जब हमारी कॉन्शियसनेस इन सारी परिस्थितियों से इम्प्रूव हो रही है और सडनली हम एक जंप कर जाएगी हमारी कॉन्शियसनेस नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में, तब हमें हमारी रियलिटी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी। तो लॉ ऑफ वन की टीचिंग के हिसाब से ये थर्ड बार हो रहा है। इस थर्ड बार के प्रोसेस में कंप्लीट अर्थ जो है नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस के लिए एलिजिबल होगी। और इसी लॉ ऑफ वन की टीचिंग में आखिरी पार्ट में जो चैनल मैसेज थे वो काफ़ी हम लोगों के लिए अगेन कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाले हैं और सोचने पे मजबूर करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि ह्यूमन को ट्रांस ह्यूमन में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। ह्यूमन में जो बॉडी, ये डिवाइन बॉडी है, इसमें डिविनिटी को जानने का जो पोटेंशियल है, अगर इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल कर लिया जाए तो ये पोटेंशियल कंट्रोल हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। और कॉन्शियसनेस को एक्सट्रैक्ट करके हमारी इस बॉडी के अवतार को अनलिमिटेड अर्थ पे रहने के लिए हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं इनको रीजनरेट किया जा सकता है। सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे होगा। जो टेक्नोलॉजीज, सपोज जो टेक्नोलॉजी 9/11 में यूज़ की गई थी, हमें उसके बारे में नहीं पता। डार्क एनर्जी वेपन्स के बारे में कुछ नहीं पता। इसी तरह इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। जापान गवर्नमेंट की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि बाय 2050, क्योंकि अर्थ पे पॉपुलेशन जापान में स्पेशली नहीं बढ़ रही है, तो हम आपके अवतार को अनलिमिटेड धरती पे रख सकते हैं। बाय 2050 हम ये कर पाएंगे। हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सटेंड किया जा सकता है। सेम रिस्क लॉ ऑफ टीचिंग के लास्ट के पार्ट में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं, 65 चैप्टर में है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग, जब परिवर्तन होते हैं, जैसे कोई इन्वेंशन होता है, कोई भी बड़ा इन्वेंशन धरती में पिछले जो 100-200 सालों में हुआ, उस समय जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, कम्युनिकेशन इतने फास्ट नहीं थे, टेलीफोन नहीं था, तो भी धरती के अनेक हिस्सों में सेम इन्वेंशन हुआ। जो प्लान होता है, जब वो इम्प्लीमेंट होता है, उसको कुछ लोग कैच करते हैं और कैच करके वो नई इन्वेंशन होती है, किसी एक का कॉपीराइट हो जाता है जो उसको पहले रजिस्टर्ड करा लेता है, लेकिन सेम इन्वेंशन धरती पे 3-4 हिस्सों में एक साथ होती है। ऐसे ही जब युग परिवर्तन होना है तो इन्फॉर्मेशन, सिमिलर इन्फॉर्मेशन डिफरेंट तरीके से आना शुरू होती है। डॉक्टर नेरुदा का इंटरव्यू है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर जिन्होंने पहली बार सुना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। 5th इंटरव्यू थे, 4 इंटरव्यू इमीडिएटली पब्लिश हो गए 1998 में। 5th इंटरव्यू के लिए उन्होंने कहा कि अगर कॉन्शियसनेस कभी रेडी होगी तो ये इंटरव्यू रिलीज किया जाए, और वो इंटरव्यू 2014 में पब्लिश हुआ। अब 9 साल हो गए हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा है। उस इंटरव्यू में भी जो ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ा चैलेंज बताया, ह्यूमन 3.0, वी आर ह्यूमन 2.0, आप लोग उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। 3.0 इज ए ह्यूमन ट्रैप्ड इनटू ट्रांसह्यूमनिज्म। तो ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हम सबके सामने भी है कि हम ट्रांसह्यूमनिज्म, और जिस तरह वर्तमान समय में एआई बढ़ रही है, आने वाले समय में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जॉब्स में रिस्क है। और जो पुरानी पहले बातें हुई, इसके बारे में भी ये डीपॉपुलेट करने का एक एजेंडा है। बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स इस एजेंडा का हिस्सा हैं, फेक हैं। अगर उनको पहचानना हो तो उनकी टीचिंग में अगर डीपॉपुलेशन शब्द बार बार आता है आउट ऑफ ब्लू, इसका कोई भी रेफरेंस नहीं है, लेकिन एकदम से वो डीपॉपुलेशन की बात करते हैं, तो वो इसी एजेंडा की बात करते हैं। अर्थ ओवर पॉपुलेटेड नहीं है, ऐसा हमको लगता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ये 10 खरब लोगों के लिए यहाँ पे सस्टेनेबल है, और अभी हम 8 खरब हैं, पहली बात। और जो स्पर्म काउंट है, मेल स्पर्म काउंट हैं, वो 95 मिलियन स्पर्म पर मिलीलीटर होते थे 1999 में ऑन एन एवरेज। इस समय ये 40 मिलियन पर मिलीलीटर रह चुके हैं। इसके अगर कम किसी के होते हैं, ये एवरेज की बात हो रही है, कुछ लोगों में मतलब एवरेज अर्थ का, इससे कम अगर होता है तो वो सिर्फ आर्टिफिशियली कंसीव कर सकते हैं।
इस हद तक कम जा चुके हैं, और हमारे खाने पीने में और स्कूल के एजुकेशन में ट्रांस ह्यूमनिज्म को किस तरह बढ़ाया जा रहा है, ट्रांसजेंडर को किस तरह बढ़ाया जा रहा है, ये सब लोग देख सकते हैं। और जो आने वाले समय में जो फ्यूचर रिस्क हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, डिजिटल करेंसी। डिजिटल करेंसी ऐसा लगता है कि ये डिजिटल पेमेंट करने का कोई तरीका है और इससे ट्रांसपेरेंसी आती है या हमारी लाइफ इजी होती है। बिल्कुल भी नहीं। डिजिटल करेंसी फिजिकल करेंसी को हटा के डिजिटल फॉर्म में करेंसी है, जिसके आने के बाद फुल कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होंगे। एक सरल से एग्जाम्पल से, पिछले समय में हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे जिनके पास ये नहीं थी। अगर गवर्नमेंट के पास डिजिटल करेंसी हो और गवर्नमेंट सिर्फ एक क्लॉज की जिन्होंने ये नहीं ली, उनकी 50% जो वेल्थ है वो रिड्यूस कर दी जाएगी। सो इस तरह के कंट्रोल है, या किसी तरह का डेमोन्स्ट्रेशन है जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फुल कंट्रोल है। डिजिटल करेंसी ये कंट्रोल का मेथड है जिसके बारे में आप जाने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग डावोस में होती है। पिछली बार उन्होंने बताया कि ईच एंड एवरी ह्यूमन का कार्बन फुटप्रिंट नापने का जो ट्रैकर है वो उन्होंने रेडी कर लिया है। हम कितना कार्बन जो इसके थ्रू कंट्रोल करने के लिए ह्यूमैनिटी को उनके पास मेथड्स बना रहे हैं, स्मार्ट सिटी बन रही हैं। ये सारे इसी डार्क एजेंडा का हिस्सा हैं, इस युग परिवर्तन को रोकने का हिस्सा हैं। लेकिन जो डिवाइन प्लान है वो तो इम्प्लीमेंट होके रहेगा। डिवाइन प्लान जो युग परिवर्तन है, हम जो थर्ड आई है ये एक्टिवेट होनी शुरू हो गई है, और अर्थ की में डिफरेंट टाइम लाइन्स थी। टाइम लाइन बहुत सिंपल बात है कि जैसे कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसका जीवन जो है मोर और लेस एक पॉसिबिलिटीज़ में, जिस परिवार में पैदा हुए और उस पॉसिबिलिटीज़ से लेकर एक टाइम में उसकी लाइफ चलती है। तो जो अर्थ, इतनी बड़ी अर्थ में कंप्लीट लोगों के लिए जब ये टीचिंग्स आई लॉ ऑफ वन की या डिफरेंट टीचिंग्स थी, तो मल्टीपल टाइम लाइन्स थी, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ थी कि ये शिफ्ट किस तरह होगा। ये शिफ्ट में दो पॉसिबिलिटीज़ डॉक्टर नेरुदा ने बताई, ह्यूमन 3.0 एंड ह्यूमन 3.0 सोवेरियन इंटीग्रल। दैट सोवेरियन इंटीग्रल वाज लाइक द युग परिवर्तन। तो या तो ट्रांस ह्यूमन में वो ट्रैप हो सकता है, या वो ये ह्यूमैनिटी का अपना पूरा पोटेंशियल अनफोल्ड हो जाएगा। जैसे अभी हमारा जो ब्रेन कैपेसिटी है, न्यूरॉन्स हैं, वो सिर्फ 2.2% है एवरेज, और हमारा डीएनए वो सिर्फ 10% है। ये सारा पोटेंशियल अनफोल्ड हो जाएगा। हम सेपरेशन बेस्ड कॉन्शियसनेस से हट के वननेस की कॉन्शियसनेस में आ सकते हैं। तो ये ग्रेट अवेकनिंग थी। इस जो ये चेंजेस हो रहे हैं, इस चेंजेस में हमारा डीएनए एक्टिवेट हो रहा है। तो ये सारे इवेंट आने वाले समय में हम देखेंगे। क्यों मैंने इसके बारे में बताया है, क्योंकि पिछली बार अचानक गवर्नमेंट ने जिस तरह कंट्रोल किया और हम समझ नहीं पाए और डर गए, या लोगों को जिस तरह की डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा, अगर हम अब की बार पहले से इन स्टेप्स को जान पाएँ, अवेयर हो पाएँ, तो हम मिलके एक स्मूथ ट्रांजिट क्रिएट कर सकते हैं। जो डिफरेंट टाइमलाइंस थी, जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी, उसकी वजह से अर्थ का जो शिफ्ट था, दैट वाज वेरी, इट कुड बी वेरी काओटिक, क्योंकि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ थी। अब ये सारी पॉसिबिलिटीज़ खत्म होकर सिर्फ एक टाइमलाइन है। कंप्लीट ह्यूमैनिटी नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में जंप करेगी कंप्लीट। इसके पहले था कि क्या होगा, सिर्फ कुछ लोग लेट ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ फर्स्ट फेज में करेंगे। जो फर्स्ट फेज में करेंगे वो पायनियर हैं, वही लोग अभी इस तरह की बातों को सुनने के लिए एलिजिबल हैं, नहीं तो डिनायल मोड में आ जाएंगे। तो इस फर्स्ट फेज में जो लोग सुन रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन आने वाली जनरेशन्स के लिए हम इन कंट्रोल्स को समझें, अवेयर हों, अवेयरनेस फैलाएं, और अपनी कॉन्शियसनेस को अर्थ की कॉन्शियसनेस जो बड़ी तेज़ी से अर्थ की फ्रीक्वेंसी रेज हो रही है, उससे मैच करते रहें, और इससे मैच करके हम इस प्रोसेस का हिस्सा बने। क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इसको
जो पूरी अर्थ के लिए होना है, और अभी बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं, तो जो पॉइनियर हैं उनकी जिम्मेदारी इसलिए और बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आने वाले एक रिस्क में और बता के फिर हम थोड़ा सा मेडिटेशन करके बाकी आपके क्वेश्चन लेंगे। फेक एलियन इन्वेजन। अर्थ पे जो कुछ भी होने वाला है, जिस तरह रीजनल लेवल पे बीमारियां होती थी इंडिया में, अलग अलग जगह बीमारियां होती थी, कभी फ्लू जर्मनी में होता है, कभी एशिया में, कभी यूरोप में, एक फ्लू को पूरी ग्लोबल करा गया। सेम वे आने वाले समय में सारी चीज़ें ग्लोबल होंगी, क्योंकि ये वन वर्ल्ड गवर्नमेंट या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें करते हैं। और ये इस हद तक गवर्नमेंट्स बोलती हैं कि हमारी अभी 15 अगस्त को इंडिया ने इंडिपेंडेंस डे मनाया, और वहाँ पे भी पीएम ने इसी के बारे में बोला कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को के लिए एलिजिबल हैं, या हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज़ वन वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे कंप्लीट अर्थ को एक गवर्नमेंट कंट्रोल करे। और इसीलिए जो ग्लोबल इवेंट होंगे उसमें डिजिटल करेंसी पूरी अर्थ पे कर रहे हैं, कार्बन फुटप्रिंट पूरी अर्थ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, करने का जो ट्रैकर है पूरी अर्थ के लोगों के लिए। और सेम वे जो आने वाला एक और रिस्क है फेक एलियन इन्वेजन का है। अगर हम ये पहले से जान जाएं तो अब की बार बेवकूफ़ होने से बच सकते हैं। फेक एलियन इन्वेजन की भूमिका बनाने के लिए ही स्टीफन गियर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं डिस्क्लोजर के नाम पे। अब आपने न्यूज़ में सुनना शुरू कर दिया होगा कि यदा कदा कि वहाँ पे एलियन दिख रहे हैं, वहाँ पे सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। ये मेंटल प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी घटना की। और एक रिस्क ये है कि होलोग्राफिक प्रोजेक्शन से पूरे अर्थ पे एक रिस्क क्रिएट कर देना कि अर्थ पे बाहर की किसी शक्तियों ने अटैक कर दिया और पूरी दुनिया की गवर्नमेंट एक हो। तो सेम वे जैसे पहले किया था, और अगेन उन कंट्रोल के थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश, ये आने वाले समय में अगर होगा तो हम पहले से जान सकते हैं। अब लेकिन इतनी सारी निगेटिव बातें हो गई, इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, डर होता है। डरने की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम को जो डिसफंक्शनल है उसके प्रति अवेयर होके उस डिसफंक्शनल सिस्टम को जो अब तक था सिर्फ हम देख नहीं पाते थे, इस जो नई लाइट में हम देख पा रहे हैं, और देख के हम इसको बदल पाएंगे। इसलिए है लोग अक्सर पूछते हैं या सोचते हैं कि अगर इतनी सारी बातें हैं तो हमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग क्रांति की बातें करते हैं, और क्रांति से ये नहीं रुक सकता, क्योंकि ये एक कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। कॉन्शियसनेस शिफ्ट में डुअलिटी में ये पेंडल करता है। ये दोनों एक ही जो लाइट या डार्क दोनों मिला के अब तक की मैट्रिक्स का हिस्सा है। हम किसी भी तरफ से युद्ध करें, ये जो पेंडल है ये चलता रहेगा, दोनों तरफ की फोर्स बैलेंस रहेंगी, पेंडल को मूव करती रहेंगी। तो लोग क्रांति की बात करते हैं, और इस तरह की उनकी सोच कुछ जस्टिफाई लगती है, क्योंकि थर्ड डायमेंशन में अभी तक युद्ध और इससे ही जीते जाते हैं। लेकिन ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट है। तो मैं या जो स्पिरिचुअलिटी के लोग हैं वो ये मानते हैं कि इसका बेस्ट तरीका है कि हम कॉन्शियसनेस में अपनी चेंज लाएं। और जो शिफ्ट जो अर्थ में चेंजेस हो रहे हैं, इसके दो और बड़े लक्षण हैं। सोलर फ्लैशेस, आपने न्यूज़ में सुन रहे होंगे, एक्स क्लास की, एम क्लास की सोलर फ्लेयर आती है। जब भी ये सोलर फ्लेयर आती है तो हमारे सेल्स जो हैं उसको एक्सपेंड करती है, उसमें लाइट आती है। ये लाइट हमें नए युग के लिए तैयार करती है। तो ये तो एक इसका ये हिस्सा है जो हमें प्रिपेयर कर रहा है। सेकंड इसका हिस्सा है कि हम एक फोटोन बेल्ट में जा रहे हैं। हमारा कंप्लीट सोलर सिस्टम, इस फोटोन बेल्ट में हमारे थॉट्स को जो मैनिफेस्टेशन है इसकी पावर बहुत बढ़ जाती है। जब भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कम होती है, जो एस्ट्रोनॉट की बात हुई थी, वहाँ पे भी उनके मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे हो जाते थे। और सेम फेस में हम हैं तो हमारे थॉट्स मैनिफेस्टेशन होंगे। तो अगर हम ये जानते हैं कि आने वाले समय में ऐसे चेंजेस हैं, तो हम अपने विजुअलाइजेशन से या हम अपने थॉट प्रोसेस से, हम अपने कॉन्शियसनेस से इस प्रोसेस को स्मूथ कर सकते हैं। तो ये मेरा तरीका है, ये सबसे इफेक्टिव तरीका है। हम अपनी अगर सिर्फ हम 5 मिनट रोज जब हम बेड में जाते हैं नाइट में, ये दुनिया देखें कि
जो युग परिवर्तन के बाद की दुनिया है कितनी सुंदर है, वननेस है, धरती पे युद्ध नहीं है, बीमारी नहीं है, लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है। बीमारी आर्टिफिशियली क्रिएटेड है हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से। ये सिर्फ थर्ड डायमेंशन की मैट्रिक्स में है, बीमारी और छोटा लाइफ स्टाइल। हायर डायमेंशंस में ये सब नहीं है। तो ऐसी दुनिया जिसमें पानी भी अमृत है, हवा प्योर है, इंश्योरेंस नहीं है, संघर्ष नहीं है, अगर हम सिर्फ 5 मिनट ये विजुलाइज करें और एक स्मूथ ट्रांजिट हो रहा है, थर्ड डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन का जो शिफ्ट है ये बहुत स्मूथ हो रहा है, तो ये स्मूथ ट्रांजिट होगा। तो ये सबसे इफेक्टिव तरीका है, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि हम एक्शन लें, वेपन लें और गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाएं, वो तरीका सिर्फ इस पेंडल को दोनों तरफ से ही करता रहता है, वो थर्ड डायमेंशन ही रहती है। तो इस थोड़े से समझने के बाद थोड़ी सी निगेटिविटी को कम करने के लिए हम मिलकर मेडिटेशन करते हैं। बहुत छोटा मेडिटेशन है, सिर्फ 10 मिनट्स का है। हमने 5 डायमेंशन के बारे में अगर पहली बार सुना है तो हम अपनी कॉन्शियसनेस में ये बीज डालते हैं, क्योंकि हम फोटोन बेल्ट में हैं, कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो फास्टेस्ट तरीके से इवॉल्व हो। और फिफ्थ डायमेंशन जो है, क्योंकि हम मल्टी डायमेंशनल बीइंग हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन जहाँ से आती है वो उसको परसीव कर सकते हैं, तो हम भी उस लेवल पे जाएं कि हम इसको फील कर सकें, महसूस कर सकें। जैसे बात हुई कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड कम होती है तो थर्ड आई एक्टिवेशन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये काल्किफाई है और ये एक्टिव हो रही है तो प्रॉब्ली इट इज़ द साइन। बहुत सारे लोगों को जो अनहत नाद जो पहले कभी सुनता नहीं थे, लोगों को बड़ी साधना करना पड़ती थी, अब आसानी से सुनाई दे रहा है। यही साइन है कि ये हो रहा है और बहुत आसानी से हो रहा है। और बहुत सारे लोगों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर थर्ड आई आपकी एक्टिवेट हो रही है तो ऑटोमेटिक हो रही है। अगर आपने बहुत ज़्यादा साधना नहीं की तो भी, तो उसमें मान लो किसी बॉडी के किसी पार्ट को हमने बहुत सालों तक यूज़ नहीं किया तो वो एक्टिव तो है, लेकिन थोड़ा सा उसको और एक्टिवेट करना पड़ता है। तो हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करने के लिए ब्लिस के जो मोमेंट हैं, थर्ड आई से डीएमटी प्रोड्यूस होती है और जो ब्लिस हम एक्सपीरियंस करते हैं वो इसका एक है। तो जीवन में जब कभी ब्लिस का अनुभव हुआ है उसको कभी कभी याद करें तो ये इसको और एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। ये एक्टिवेट हो चुकी, लेकिन ये उस तरह है जैसे हमने इस पार्ट को बहुत सालों से यूज नहीं किया है। तो थोड़ा सा ब्लिस का अनुभव करेंगे तो वो उसमें वहां पे एक्टिवेशन होगा और तेजी से। उसके 2 पार्ट है। पहले पार्ट में एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ये इतना डीप विषय है तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कि हम जो कर रहे हैं इसका पर्पस क्या है। और सेकंड पार्ट में मेडिटेशन है। तो जो मेडिटेशन पार्ट है वो वैसे तो एक बार करना काफ़ी है, लेकिन अगर एक बार किया और मन में लगा कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए तो उसको 2-3 महीने में दोबारा कर सकते हैं। ये दोनों बातें हैं कि जैसे लोग कहते हैं कि हम ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, कच्चा फूड फायदा करता है, लेकिन फूड के ऊपर अगर हमें बायो क्वालिटी का नहीं मिल रहा तो उसमें जो पेस्टिसाइड्स डाले हुए हैं तो क्या हमें नुकसान करेगा कि नहीं करेगा। तो इन जो बहुत सारे लोग मानते हैं और मैं भी मानता हूँ कि उसको अच्छे तरीके से धो के कच्चा खाया जा सकता है, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि उसमें जो हीलिंग पावर है वो अपने आप में काफ़ी है। लेकिन इसी तरह घास है, घास में तो केमिकल स्प्रे किया हुआ है लेकिन उसके बाद भी चलने में फ़ायदा होगा। और बहुत सारी नेचुरल घासें पूरी दुनिया में तो नहीं किया होता, जैसे मैं पहाड़ों में जाता हूँ वहाँ पे तो ऐसा नहीं है। जितने साधन हमारे पास हैं तो फिर भी नुकसान नहीं करेगा, उसको कर सकते हैं। अच्छा, तो जैसा मेरा मानना है। कोबरा एक मिलिट्री शब्द तो कहना गलत है, लेकिन जो ये युद्ध चल रहा है उस युद्ध में एक्टिव पार्टिसिपेट करते हैं 2 फोर्सेस के बीच में। उन्होंने एक मेडिटेशन बताया, उस मेडिटेशन का ये नाम है, उस मेडिटेशन करने की टेक्निक है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इस पे सबको काम करना है। फर्स्ट इज बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम क्या है? बिलीफ सिस्टम इस थर्ड डायमेंशनल की मैट्रिक्स का पार्ट है, जिसकी वजह से ये मैट्रिक्स बहुत स्ट्रांग है। और इसमें से बहुत सारा हिस्सा जो है वो डिसफंक्शनल है, क्योंकि समय के साथ वो डिसफंक्शनल हो गया, और बहुत सारा हिस्सा है जिसकी आने वाले समय में ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों को मिला के बिलीफ सिस्टम है। और इस दुनिया में अगर आप देखो तो जो डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट जीने की तरीके हैं, उनको हम मानते हैं कि ये धर्म है, जबकि वो उसको छोड़ना और उसके प्रति जो हमारा अटैचमेंट है, दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस।
जी और इस पे हम सबको काम करना पड़ेगा आने वाले समय में, सबको लगातार काम करना है, ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। श्री निशा दत्त महाराज जी की टीचिंग है वो बहुत प्रोफाउंड टीचिंग है। जी जैसे कॉन्शियसनेस के जिस लेवल पे जो कोई पर्सन होता है उसके बियॉन्ड को वो समझने की कोशिश तो करता है, और यही प्रोसेस है कि पहले वो इंटेलेक्चुअल समझने की कोशिश करता है, फिर अपनी लाइफ में उतारता है, जी लेकिन उसको समझना कठिन नहीं होता, बहुत कठिन होता है, जी क्योंकि जी वो जी उस लेवल से कही जा रही है। और गुरु के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि वो जानता तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर वो सारी कह देगा तो वो बेकार हो जाएगी, क्योंकि कोई समझ नहीं पाएगा। तो वो बीच का रास्ता बताते हैं कि थोड़ा जी थोड़ा समझाएं, थोड़ा थोड़ा वो सच होता है, थोड़ा थोड़ा वो इस तरीके से सच को कहते हैं कि समझ में आ सके। जी जो ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस है, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, जी वेयर यू ड्रॉप ऑल ऑफ योर आइडेंटिटीज इंक्लूडिंग दैट यू आर ए मैन और यू आर ए वुमेन। ये आइडेंटिटी सबसे लास्ट तक रहती है। हम अपनी, हमारे ऊपर कितनी आइडेंटिटीज हैं, अब हमारे अपने रिलीजन की, प्रोफेशन की, जी हम किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, हम सनातन धर्म के हैं, हम इस्लाम के हैं, शिया सुन्नी एंड सो ऑन। जी इन जी सारी आइडेंटिटीज को जब हम ड्रॉप करते जाते हैं, प्रोफेशन की आइडेंटिटीज को, स्पिरिचुअल आइडेंटिटीज को ड्रॉप करना और भी, इससे भी कठिन काम है। उसको जी भी जब हम ड्रॉप करते हैं तब भी लास्ट में रह जाती है कि मैं मेल हूं और फीमेल हूं। जब जी ये भी ड्रॉप हो जाती है, देन यू आर एन ऑब्जर्विंग कॉन्शियसनेस, तब आपके अंदर ये दृष्टा भाव होता है। इसीलिए इसको समझना बहुत कठिन है, लेकिन उनकी टीचिंग बहुत प्रोफाउंड है। तो पढ़ते रहें, मैं भी पढ़ता हूँ, और जी उनको यूज करते रहें। वो पढ़ते पढ़ते ही धीरे धीरे आपकी कॉन्शियसनेस में स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। तो जब हमारा गोल क्लियर होता है तो हमारी जर्नी है उसी डायरेक्शन में चलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए इन टीचिंग का फायदा है, लेकिन जी हम जी उसको परसीव तब तक नहीं कर सकते जब तक हम उस कॉन्शियसनेस में ना आ पाए। जी हम इस समय में हम हैं कि जो हम थोड़ा भी एफर्ट करते हैं तो उसका हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि डेंसिटी, जो पहले की डेंसिटी ये अलाउ नहीं करती थी। तो हमें कई कहते थे कई जीवन साधना करनी पड़ेगी, इस जीवन में बहुत आसानी से हो रहा है, दैट इज सफिशिएंट। और कभी कभी लेकिन हमें जैसे ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए। अगर हम बीज डालते हैं, बार बार उखाड़ के देखेंगे कि लगा नहीं, तो वो फायदा नहीं करता। लेकिन कभी कभी एनालाइज करना चाहिए, हमारी टेक्निक ठीक है, हम ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं, हर 2-3 महीने बाद एक बार एनालाइज कर लिया, दैट जी हेल्प्स। जी जी यस, ये चैलेंज भी सबके सामने आता है कि लोग भटक जाते हैं। तो अब अगर हमारे पास समय कम है तो हम क्या करें? तो अगर समय कम है तो मैं समझता हूँ कि किसी एक अच्छी टेक्निक की प्रैक्टिस करें, रेगुलर। रेगुलर प्रैक्टिस जो है बहुत हेल्प करती है। तो अधिकांश लोग शुरू में नहीं समझ पाते तो यूट्यूब या कोई मेडिटेशन या कोई सिंपल मेडिटेशन करते हैं। तो कोई एक अच्छी टेक्निक करें। फॉर एग्जांपल मैं क्रिया करता हूँ, इससे मुझे फ़ायदा हुआ और बहुत लोगों को फ़ायदा हुआ। तो क्रिया योगा की टेक्निक एक कर सकते हैं, उसका रेगुलर अभ्यास करें, थोड़ा सा मनन करें, और इस इंटेंशन डालते रहें कि जो मेरे लिए सबसे अच्छा है वो मेरे लिए प्रकट हो, तो भटकाव नहीं होगा। और मेरे चैनल में कई छोटे छोटे मेडिटेशन पड़े हैं। मेरे सारे मेडिटेशन छोटे होते हुए हैं क्योंकि ज़्यादा समय के लोग कर नहीं पाते। मेन प्रैक्टिस है मेरी क्रिया, वो लंबी है। और बाकी ये जो मेडिटेशन है, ये जो इंटेंशन डालने वाले, ये बहुत छोटे हैं। उसमें आप कर सकती हैं अपने डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए, जैसे अभी किया कि हमें जो नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस, ये कितना बड़ा गोल है। अभी तक हम लोग सोचते थे कि मोक्ष हो जाए सबसे बड़ी बात है। मोक्ष का मतलब क्या था कि हमें जन्म मरण की साइकिल से छूट जाए। हमने आज उसका बीज डाला है कि हम नेक्स्ट लेवल की कॉन्शियसनेस में चले जाएं। तो ऐसा बीज डालते रहेंगे, वो आपके लिए प्रकट होता रहेगा। अगर हमें लगता है कि मान लो पहले समय में हमने कोई गलत गुरु था, मान लो हमने गलत गुरु गलती से चुन लिया, तो साहस रखें उसको छोड़ने का, है ना। ये नहीं कि हमने कर लिया और हमें इसी रास्ते पे गाय बकरी की तरह चलते रहना है। इसीलिए थोड़ा सा मैं धर्मवीर को जी को जानता था कि उनको ज़रूरत नहीं है जो मैंने कहा एनालाइज करने की, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात के बीच में बोला कि एनालाइज करते रहें कभी कभी, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एक ढर्रे पे चलते जा रहे हैं और वो ये एनालाइज नहीं करते कि उनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। थोड़ी थोड़े समय देखें कि हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं, हम अप टू डेट हैं, और जो धरती पे हो रहे हैं परिवर्तन, उसका हिस्सा इस तरह बनते रहेंगे। इसलिए बीच में 2-3 महीने बाद थोड़ा सा एनालाइज कर लिया, भटकन नॉर्मल है। और भटकन इसलिए नहीं है कि वो, भटकन इसलिए भी आती है कि आप एक एनर्जीज हो, वो एनर्जी उस और अट्रैक्ट हो जाती है।
तो आपसे मेरा मतलब है जनरल हम सब लोगों की बातें कर रहे हैं। वो लोग अगर गलत किसी गुरु के पास पहुंच जाते हैं या गलत रास्ते पे फंस जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर एनर्जी उस और अट्रैक्ट हो रही थी। अब हम तेज जर्नी से करेंगे, लेकिन हमने जर्नी तो अपनी अपनी एनर्जी तो उठा ली, लेकिन फिर भी हम डर रहे हैं कि हम पुराना गुरु था उसको छोड़ें कि ना छोड़ें। नहीं, एनालाइज करें, आगे बढ़ें, धर्म वही है, उसका पालन करें। एक तो मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, उस मैप ऑफ कॉन्शियसनेस में देख सकते हैं कि आपके अंदर बदलाव आ रहा है कि नहीं। अधिकांश लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं और छोटे छोटे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, तो लोग अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, मुझे ये विज़न हुए, मुझे ये दर्शन हुए मेडिटेशन में। तो लोग सोचते हैं कि हमें कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हमारा रास्ता गलत है? नहीं, जीवन में परिवर्तन होना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप पीस में रहते हैं, ब्लिस में रहते हैं, चीज़ों को समझने की दृष्टिकोण विकसित हो रहा है, तो आप सही डायरेक्शन में हैं। विजन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उससे खुद सेल्फ एनालिसिस सबसे अच्छा है, या अगर कोई गुरु नियर हो जो आपको ऑब्जर्व करता हो, जिससे आप पूछ सकें, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो हेल्प मिलती है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन ही हेल्प करेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। हम उस बेल्ट में हैं जिसमें हमारे थॉट्स हमारी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारा जो काम है, जानने वालों का ये काम है कि इसको स्मूथ देखें, इसका डर ना देखें। और दूसरी बात, ये होलोग्राफिक प्रोजेक्शन होगा, ये असली नहीं होगा। तो डराने की कोशिश होगी, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा ये थर्ड क्वेश्चन जो है कि कितने लोगों की डेथ होगी, पहली बात तो होलोग्राफिक है, और उसके बाद भी अगर ये रियलिटी में लगा, तो आप हमेशा ऐसा जानो कि 2 देशों में युद्ध हो रहा है इस समय, रूस में और यूक्रेन में। तो सबके साथ तो एक जैसा असर नहीं हो रहा। कुछ लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, उनको यूरोप में रहने की परमिशन मिल गई, वो वहां से बहुत सारे माइग्रेट होकर जर्मनी में आ गए, उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं। कुछ लोग मर गए, कुछ लोगों के हाथ पांव कटे और वो बच्चे अनाथ हुए। किसी भी घटना का, जो वो ग्लोबल भी हो, तो भी उसका असर इंडिविजुअल होता है, ये जाने। तो आपकी कॉन्शियसनेस जहाँ पे होगी, वो असर आपके लिए होगा, बस वही इंपॉर्टेंट है। यस, विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में थोड़ा सा अंतर है, कुछ लोग विजुअलाइज नहीं कर पाते। इन दोनों में एक अंतर है कि अगर आप सिर्फ माइंड से सोच रहे हैं, वो विशफुल थिंकिंग है, उसमें माइंड इन्वॉल्व है। और विजुअलाइज करते हैं तो हार्ट एकदम से खुल जाता है और आपको लगता है कि ये रियलिटी है। ये दोनों में अंतर है। तो विजुअलाइज करने की अगर पावर नहीं है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये बढ़ती जाएगी। जी। विजुअलाइजेशन जो है रियलिटी को क्रिएट करता है, बाकी विशफुल थिंकिंग है। लेकिन फिर भी अगर मान लो नहीं हो पा रहा, तो हम इसी स्टेप बाय स्टेप करते हैं, विजुअलाइज करने की कोशिश करें। कभी कोई ऐसा इवेंट जिसमें आप बहुत खुश थी, आंखें बंद करके, सेम टू सेम वही फीलिंग जब आने लगे, तो आपने विजुअलाइज करना शुरू हो गया। जो खेचरी मुद्रा है, जो आमतौर पे योगी करते हैं हठ योग में, वो अपनी टंग को बिल्कुल पीछे तक ले जाते हैं और वहां से वो उसको कंट्रोल करते हैं। जो यहाँ पे बिंदु है, बिंदु से अमृत गिरता है और वो अमृत डायरेक्ट यहाँ हमारे नाभि में जाके बर्न हो जाता है। अगर वो उसको टंग पे ले लें तो उनको खाने पीने की जरूरत नहीं है, तो वो बहुत लंबे समय तक समाधि में रह सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। लेकिन क्रिया योग जो है मध्य मार्ग है, ये गृहस्थ के लिए है। नॉर्मल डे टू डे लाइफ में करना है, योगियों की तरह उनके पास इतनी अगर टंग लंबी नहीं है, या वो टंग को नीचे से कटवाते भी हैं हठ योग में, या उसको हाथ में घी लगा के जीभ को खींचते हैं एंड सो ऑन, वो सब करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्रिया योग में। बिल्कुल खाली टंग अगर रोल करके ऊपर टच होती है, दैट इज सफिशिएंट, उससे आपका कनेक्शन जो है वो बन जाता है। और अगर आप प्रैक्टिस कर रही हैं, तो आप रात को सोते वक्त टंग को रोल करके सो जाइए, जितनी देर तक रहेगी, क्योंकि ये वो रिवोल्ट करती है, बार बार वापस आने की कोशिश करती है, तो ध्यान नहीं होता। तो जिस समय ड्राइव कर रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, उसको आदत बनाने के लिए हर समय रोल रखें। जितना रोल रखेंगे वो वैसे भी फायदा है। उस समय एनी हाउ जो आपका कनेक्शन जो है हायर रियल्म से बनना शुरू हो जाता है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनकी खेचरी सिद्ध है, लेकिन उनका इवोल्यूशन 0 है। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खाली टंग रोल रखते हैं, वो अपनी खेचरी में है कि मेरी खेचरी सिद्ध है और मेरी ये मुद्रा सिद्ध है। डजेंट मैटर, बस इसको रोल फायदा करता है। देखिए, असली जो ध्यान है वो वही है कि बॉडी कॉन्शियसनेस खत्म हो जाए। उससे पहले जो है वो ध्यान करने की कोशिश है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कभी ध्यान हो जाए। और जो ध्यान के अनुभव होते हैं, आमतौर पे हम लोग इसीलिए शेयर नहीं करते पब्लिकली, गुरु से शेयर करते हैं डिस्कस करने के लिए। क्योंकि मान लो एक ने आपने किया और बाकी जो ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं उनको डिसअपॉइंटमेंट हो गया कि अरे हम तो कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं होता। एक ये कारण है।
और दूसरा सारे जो एक्सपीरियंसेस हैं ये इंडिविजुअल हैं। जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी दूसरे को होने की चांसेस बहुत कम है। सिमिलर हो सकते हैं लेकिन सेम एक्सपीरियंसेस किसी को नहीं होगा। तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस है और इसको करती रहेंगी तो और स्टेबल हो पाएंगी, फिर वो आप उसको फील करना शुरू कर देंगी। एंड यस, बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट इज थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मैं आई डोंट नो जो होता है वो मेरे साथ में ठीक है या आई डोंट नो बॉडी में कहाँ होना चाहिए, पर वो मैं एकदम पूरा मेरा बाहर चला जाता है, तो मैं यस, थोड़ा आउट ऑफ confused- बॉडी इज ए गुड थिंग। तो उसके बाद ही वही स्पेस और टाइम में आप ज़्यादा समय रह पाएंगे बिना बॉडी के, जब कॉन्शियसनेस खत्म हो जाएगी तो। और कुछ अच्छी अगर प्रैक्टिस कर रही हैं तो आपकी तो जर्नी और स्टेबल हो जाएगी। ये लेमोरियन क्रिस्टल है। जी तो जी ये क्रिस्टल अनेक तरह के होते हैं। लेमोरियन क्रिस्टल एक स्पेशल तरह का क्रिस्टल है। जैसे इसमें बार कोड की तरह लाइनें यूं दिखती हैं, जैसे बार कोड होता है ना, किसी चीज़ में पड़ा होता है। अभी मुझे पता नहीं आपको दिख पा रहा है, यस, तो किसी एंगल पे ये लाइनें दिखती हैं। तो ये क्रिस्टल के अंदर मेमोरी सेव होती है पुराने समय की। ये मेरे हाथ में अक्सर रहता है, ये मेरा बहुत प्रिय साथी है। यस, यूट्यूब का पूरा मेरा चैनल है, सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ फ्री है। आप उसे डाउनलोड कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं और प्रैक्टिस कर सकती हैं। उसमें पूरी एक प्ले लिस्ट है, वो इसी के नाम से है, मेडिटेशन के नाम से। और थैंक यू उसमें सो कई बहुत अच्छे मेडिटेशन है, सिंपल मेडिटेशन है। से बिलीफ सिस्टम की बात हुई थी, तो अपने बिलीफ सिस्टम और मेमोरी और जो कर्म का बंधन है वो मेमोरी की फॉर्म में ही हमारे ऊपर रहता है। तो कर्मों बिलीफ मेमोरी को रिप्लेस करने का मेडिटेशन कर सकते हैं। डीएनए वाला बहुत अच्छा है, और एंड सो ऑन। तो कई सिस्टम है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जो हम लोग बातें करते हैं हम कि अभी थर्ड डायमेंशन है और हम फिफ्थ में जा रहे हैं, तो फोर्थ की बातें नहीं करते, वही वो फोर्थ है जो हम धरती पे हमारा जीवन है, जिसको हम देख पाते हैं फिजिकल बॉडी में। और जब हम जिसको हम कहते हैं कि हम मर गए, अब वो विजिबल नहीं है, वो फोर्थ डायमेंशन है। लेकिन दोनों से मुक्ति नहीं होती, जन्म मरण में दोनों में यही रहते हैं, इसके बाहर की फिफ्थ है। तो लेकिन जो फोर्थ डायमेंशन का जो सिस्टम है वो वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। वहीं पे कर्म का सिद्धांत है, वहीं पे कर्म की ग्रिड है, वहीं पे वहाँ पे जब एस्ट्रल जो डायमेंशंस हैं वहाँ पे इतने चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि दोनों को मिलके फिफ्थ डायमेंशन में शिफ्ट करना है। ये उस मतलब था उस वीडियो का। अप एंड डाउन्स जो हैं वो पार्ट ऑफ द जर्नी हो सकते हैं। जर्नी थोड़ा सा अप करती है, थोड़ा सा स्टे करती है, फिर नेक्स्ट उस प्लेटफॉर्म से जंप करती है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी अप एंड डाउन आते हैं, थोड़ा बहुत कॉमन है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा आते हैं तो आप देख सकती हैं कि क्या कारण हो सकते हैं, क्यों इतनी एक्सट्रीम क्यों होती है, कि इतनी अच्छी स्टेज से फिर क्यों डाउनफॉल होता है। अब स्टेबल हो जाना चाहिए समय के साथ। यस, प्रोटेक्शन आप चाहें तो ले सकती हैं। मुझे पता नहीं कि आप किस तरह के प्रोटेक्शन की बात कर रही हैं, लेकिन आप फॉर एग्जांपल जो हमारे सारे चक्रों को ओपन करने का मेडिटेशन है, आप अपने बॉडी के चारों ओर एक गोल्डन स्फेयर या गोल्डन एग बना के आप उसके अंदर प्रोटेक्ट हो सकती हैं। हम इस समय में हैं कि हमारे थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं। अगर आप ये सोचती हैं कि कोई डार्क आपको वो कर रही है, तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है और आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हैं। यस, दैट इज गुड, प्रोटेक्शन करना। यस, आई अंडरस्टैंड कि जो जनरेशन जो दो के बीच में है, जो स्प्लिट है, ये अनेक लेवल पे हो रहा है। पार्टनर में हो रहा है, फैमिलीज में हो रहा है, क्योंकि अगर एक की कॉन्शियसनेस तेजी से बढ़ रही है लेकिन दूसरा उसके साथ मैच नहीं कर पा रहा, तो ये स्प्लिट दिखाई दे रहा है। और सोसाइटीज में दिख रहा है, और पेरेंट्स को और बच्चों को दिखेगा ही। अगर बच्चे जो हैं नेक्स्ट जनरेशन के लिए आ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन की कॉन्शियसनेस उनकी पेरेंट की कॉन्शियसनेस से डिफर करती है, इसलिए कन्फ्लिक्ट आते हैं। लेकिन हम इसको पूरी तरह हमेशा ये भी नहीं कह सकते कि वो हो सकता है कि उसकी एज में चेंजेस हो रहे हो जिसकी वजह से वो स्कूलिंग में उसका इंटरेस्ट ना हो। हर चीज़ को हम असेंशन से नहीं जोड़ सकते, लेकिन फिर भी ये कन्फ्लिक्ट है और उस कन्फ्लिक्ट को दोनों को मिलकर ही सॉल्व करना पड़ेगा। ये बेस्ट जो पेरेंट्स बच्चों के लिए बेस्ट कर सकते हैं कि अगर वो सजेशन मांगे तो उनको सजेशन दें, लेकिन अपना जो बिलीफ सिस्टम है, अपने आइडियाज़ हैं, उनके ऊपर मत थोपें। उस केस में आप बच्चों को कई बार नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे हमसे ज़्यादा जनरली एज ए जनरल बात हो रही है कि जनरल जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट कॉन्शियसनेस के साथ आ रहे हैं अर्थ पे। देखिए, अगर आप कंफ्यूज हैं कि एक डायमेंशनल शिफ्ट हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है, तो पढ़ाई की ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि जो ये हमने अब तक पढ़ा है ये वैसे भी डिसफंक्शनल होके नया। और आप ऐसा देखें कि अपने जीवन में अब इन बच्चों को जब विजुलाइज करें तो ये बच्चे
एक बहुत सुखी हैं, सेटल हैं और आपकी कॉन्शियसनेस में एक बहुत अच्छे उनका जीवन है, ये उनको हेल्प करेगा इंस्टेड ऑफ बीइंग जी। कंफ्यूज्ड और चिंता करने के। देखिए हमने बहुत सारी इस मैट्रिक्स को सस्टेन करने के लिए हमने बहुत सारे इसमें डिसफंक्शनल आइडियाज डाले हुए हैं, ये मैनिपुलेशन का हिस्सा है। उसी में से एक हिस्सा ये है कि थर्ड डायमेंशन में जो है ग्रो बहुत फास्ट होता है और इसको हम ग्लोरीफाई करते हैं। नो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जेल है, इस जेल से जल्दी छूटना ही हम सबका लक्ष्य है। नेचुरली इस अनंत ब्रह्मांड में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। जो ये प्रोसेस है ये अनएंडिंग है, ये कुछ लोगों के लिए कुछ बात वाले अगर हम इसको ट्रैप देखते हैं तो हमें ये ट्रैप लगता है। आप ये देखो कि ये एक तरह के एक्सपीरियंस करने का क्षेत्र है, एक तरह के एक्सपीरियंस सिर्फ यही कर सकते हैं। मान लो बीमारी का एक्सपीरियंस कहीं और नहीं होता या मिजरी का एक्सपीरियंस कहीं और नहीं होता, तो इस तरह का एक्सपीरियंस करने के लिए इस अनंत ब्रह्मांड में कोई ना कोई क्षेत्र बना रहेगा। अर्थ पे नहीं होगा लेकिन कहीं और बना रहेगा। तो इस सपने में आपने जान लिया कि ये एक सपने में रोल था, कोई भी कर्म नहीं है, इसकी वजह ही मुक्ति का रास्ता है। ये आपकी मेमोरीज को इसमें नहीं धकेल सकता। देखिए यही तो प्रोसेस है कि शिफ्ट हो रहा है। इसके पहले की डेंसिटी में हम बंधे रहते थे, अब ये कॉन्शियसनेस अपने आप तैयार हो रही है, वो कन्विंस हो रही है कि नहीं हमें ये नहीं करना, ये सब। तो ऐसे यही प्रोसेस है, इसी कॉन्शियसनेस नई रियलिटी को क्रिएट कर रहा है। थैंक यू वेरी मच कि आप इस इसका हिस्सा हैं और आप इसको समझ रही हैं। जल्दी खत्म होगा, डिसफंक्शनल चीजें जल्दी हटेंगी। और थैंक यू न्यू सर। एजुकेशन सिस्टम बहुत प्रोग्रामिंग का हिस्सा है। जो एजुकेशन सिस्टम है ये गुलाम बनाने के लिए थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए किया गया था। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है। इसकी रिसर्च बताते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं उनके जो कनेक्शंस इस तरह हो जाते हैं कि वो सोल्यूशन को देख नहीं पाते और प्रोग्रामिंग का हिस्सा बन जाते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा सेशन था। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।